السلام علیکم۔ آج کے ڈیٹ میں امامت کرنا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ امامت کوئی آسان چیز نہیں رہی۔ ایک امام صاحب کو کئی سارے شرائطوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ان شرائطوں میں کبھی بھولے سے انجانے میں یا چوک ہو جائے، مطلب کہ شرائطوں میں کبھی کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے، تو پھر وہی عوام، وہی مقتدی جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، امام صاحب پر فتویٰ لگائیں گے اور آخر میں امام صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہا دھو کر پڑ جائیں گے اور امام صاحب کو اتنا پریشان کیا جائے گا، اتنا ذلیل کیا جائے گا کہ مجبوراً امام صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا اور وہ استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے۔ یہ چل رہا ہے ابھی کے ڈیٹ میں، ابھی کے دور میں مسلسل کا یہ معاملہ بن چکا ہے۔ ہر گاؤں کا، ہر علاقے کا، ہر مسجد کا یہی معاملہ ہے کہ امام آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر ایک امام کو لایا گیا پھر وہ بھی چلا گیا، یعنی کہ امام اور مقتدی میں جوڑ ہے ہی نہیں۔ 50% مقتدی امام سے خوش اور 50% مقتدی امام سے ناراض۔ ایک امام پوری بستی کو خوش کر کے رکھے، اگر کوئی ناراض ہے پھر اس کے پاؤں پر جا گرے، معافی تلافی کرے، ہاتھ جوڑے۔ ہر عوام، ہر مقتدی یہی چاہ رہی ہے۔ اب میں کلیئر آپ کو بتاؤں کہ پورے گاؤں میں اور جتنی بھی عوامیں ہیں، سب کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھ گئی ہے کہ امام مطلب غلام، امام مطلب نوکر۔ اب امام کو دلالی کرنی ہے، امام کو غیبت کرنی ہے، اس کی بات اس کے پاس پہنچانی ہے، اس کی بات اس کے پاس پہنچانی ہے۔ اگر صدر کہے کہ گدھا نے بچہ دیا تو امام کا کہنا ہے کہ ہاں 4 بچے دیے۔ اگر سیکریٹری بولے کہ گھوڑا نے بچہ دیا تو امام کا کہنا ہے کہ ہاں 8 بچے دیے، یعنی ہاں میں ہاں لگانا ہے۔ اگر جو ہی امام صاحب اس کی ہاں میں ہاں نہیں لگائی، اب صدر، سیکریٹری، متولی ہی پہلے گریز کریں گے اور اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، لوگوں کو پیچھے لگا دیں گے، اور ایسی استھتی میں، ایسی حالت میں امام صاحب کی درگت ہو جاتی ہے، امام صاحب ذلیل ہو جاتے ہیں اور وقت ایسا آتا ہے کہ بوڑیا بسترا سمیٹ کر امام صاحب کو جانا پڑ جاتا ہے۔ یہ صرف میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ پورے ہندوستان میں اکثر جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے۔ امام آئیں گے، جائیں گے، امام کی کوئی عزت نہیں۔ اب امام کا نام تو مذاق بن گیا ہے۔ امام اتنے سستے بھاؤ میں ملنے لگے ہیں کہ کوڑی کا دام بھی اس پر نہیں سجتا۔ کوڑی کے بھاؤ میں امام آپ کو ملیں گے۔ ایک امام صاحب گئے، دوسرا آ گیا، اس کو 8,000 ملتا تھا، اب یہ کہیں گے مجھے 6,000 دو، میں رہ جاؤں گا۔ تو عوام سمجھ رہی ہے کہ امام بالکل سستا ہے۔ امام روڈ پر کھڑا ہے، جاؤ 8,000 10,000 کی بات کرو، اٹھا کر لاؤ، مسجد میں رکھو، اس سے اذان دلواؤ، نماز پڑھواؤ، جھاڑو لگواؤ، بیت الخلا صاف کرواؤ، سارا کام کرواؤ۔ اگر اس میں کمی کوتاہی ہو جائے، امام صاحب کے منہ پر جاؤ، 2-4 بات کہو، ڈانٹو ڈپٹو، یہ اماموں کی زندگی بن چکی ہے۔ اس لیے امامت کرنا بھائی آسان نہیں رہا، بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے، میں آج کا ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ اماموں کی غلطی کیا ہے، جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں اس کے اندر کوتاہی کمی کیا ہے۔ جب ہم خود نہیں سدھرے تو سامنے والے کو کیا سدھار پائیں گے۔ اگر امام صاحب کسی مسجد سے نکل جاتے ہیں یا نکال دیا جاتا ہے تو جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ارے مجھے تھوڑی نکالا گیا، او فلانے کو نکالا گیا، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ جانے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یعنی کہ امام کا کوئی ایسا نہیں ہے جو دکھ اور سکھ میں ساتھی ہو سکے۔ اب 10 سال کی زندگی کسی گاؤں میں دے دی، کوئی بھول چک ہو گئی، امام صاحب اپنا بوڑا بسترا لیجئے اور چلے جائیے۔ مطلب جس گاؤں میں 10 سال کی زندگی تھی اس گاؤں والوں کے پاس بھی غیرت نہیں ہے، غیرت مر گئی ہے، آنکھ کا پانی سوکھ گیا ہے، دل میں رحم اور درد نہیں ہے۔ بھائی امامت کرتے ہو جب تک تمہارے پاس صحت ہے، تندرست، تب تک لوگ تمہیں امام سمجھیں گے اور تم امامت کر سکو گے۔ جیسے ہی تمہاری صحت گرے گی، تندرستی گھٹے گی، یہی لوگ کہیں گے ہاتھ جوڑتے ہیں امام صاحب چلے جائیے، اب آپ نماز نہیں پڑھا پاتے ہیں، جس کو تم نے پوری زندگی دے دی۔ اب آخری ٹائم میں جب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، وہ تمہیں بھگا دیں گے، نکال دیں گے۔ سب سے بڑی غلطی، کمی کوتاہی ائمہ مساجد کی ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے، جتنے بھی ائمہ مساجد ہیں نا، یہ سب متحد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔
एक जुट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। एक इमाम दूसरे इमाम के पीछे पड़ा हुआ है, एक हाफिज़ कुरान दूसरे हाफिज़ कुरान के पीछे पड़ा हुआ है, एक आलिम दीन दूसरे आलिम दीन के पीछे पड़ा हुआ है। इनकी जमात खुद ही एक दूसरे के पीछे पड़ी है और एक दूसरे को जलील करना चाह रही है। अगर आज के डेट में किसी इमाम को किसी मस्जिद से निकाला जाता है किसी भी बात पर, किसी भी बुनियाद पर, तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, तो कोई ऐसी जमात नहीं है, न ऐसा कोई सिस्टम है, न ऐसा कोई निज़ाम है जिसमें इमाम साहब शिकायत दर्ज कर सके और उनसे कहे कि भाई फलानी गाँव वालों ने मुझे फलानी बात पर निकाल दिया है, आ जाओ, सारे लोग आ जाओ और बैठकर मसले का हल निकालो, मामले को रफा दफा करो। ऐसा कोई सिस्टम, कोई निज़ाम है ही नहीं। इसलिए जब जिस वक्त जिसका जी चाहता है, मन चाहता है, इमाम साहब का कॉलर पकड़ता और निकाल देता है। अगर कोई निज़ाम होता, कोई कानून कायदा होता, कोई ग्रुप होता, कोई जमात होती, तो फिर ये अवाम, ये मुक्तदी, ये सदर सेक्रेटरी डरते कि अगर हम उजुल फुजुल बातें करेंगे, इमाम को जलील करेंगे, तो पूरी जमात आ जाएगी हमारे यहाँ, पूरी टीम आ जाएगी, फिर हमारी खटिया खड़ी कर देंगे, सवाल जवाब होगा, फिर हम जलील हो जाएंगे। लेकिन इन अइम्मा मसाजिद के पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, इमाम साहब के दुख सुख में किसी को शरीक होना ही नहीं है, ना गांव वालों को और ना उनकी जमात के लोगों को। अरे चलो भाई, उसको निकाला गया, उसको बुरा भला कहे, उससे मेरा क्या लेना देना। इसी बात का फ़ायदा आज आवाम उठा रही है, इसी बात को लेकर इमाम का मजाक आज उड़ रहा है। अगर कोई निज़ाम होता, अगर कोई ग्रुप होता, अगर कोई सिस्टम होता कि फ़लाने गाँव में इमाम के साथ कोई मसला बना है, सारे लोग पहुंच जाते, ज़िला के अंदर जितने भी अइम्मा मसाजिद हैं सारे उस गांव में पहुंचते, इमाम साहब को बिठाया जाता और गांव के लोग बैठते, फिर दोनों में बातचीत होती कि मामला क्या है बताया जाए, फिर दोनों की बात सामने आती, फिर रफा दफा कर दिया जाता, सुलह सफाई कर दी जाती। लेकिन कोई यहाँ इमाम के मसले को समझने वाला है ही नहीं, इमाम के दुख सुख को कोई समझने वाला है ही नहीं। इमाम की दुर्गत इतनी हो रही है कि मत पूछिए। इमाम की परेशानी में सदर सेक्रेटरी भी शामिल नहीं होता, तो आप औरों की बात छोड़िए ना। ये कमी है इमाम के अंदर, अइम्मा मसाजिद के अंदर। इस कमी को दूर किया जाए। जब तक आप इस कमी को दूर नहीं करेंगे तब तक अइम्मा मसाजिद जलील होते रहेंगे और ज़िल्लत का दिन इसे देखना ही पड़ेगा। और ये जो अइम्मा मसाजिद के अंदर जो है ना, एक भरम जो पैदा हुआ है कि चलो भाई कोई काम नहीं मिलता हमें, इमामत ही करना है सिर्फ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, ये गलत फहमी है। इमामत की दुनिया से बाहर निकलो यार। 8,000 10,000 कमा रहे हो, तुम्हारा मजाक उड़ रहा है, तुम्हारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे पढ़ाओगे। सदर सेक्रेटरी के घर में लाख रुपया महीना आता है, फिर भी कहता हम फ़कीर हैं इमाम साहब, हमारे पास कुछ नहीं है, और तुम 8,000 पा रहे हो, बाल बच्चे को कैसे पढ़ाओगे। जिस गांव वालों को तुम ज़िंदगी दे रहे हो ना, साल दे रहे हो ना, वो भी तुम्हें नहीं पूछेंगे कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या खाते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यार इन तमाम चीज़ों को छोड़ो। नहीं, अगर इसमें रहना है तो एक निज़ाम कायम करो, एक सिस्टम बनाओ, एक कानून बनाओ, और पूरे ज़िला के अंदर जितने भी अइम्मा मसाजिद हैं सबकी मीटिंग कराओ, सबको बिठाओ, फिर एक निज़ाम के साथ इसको लेकर चलो, तब तुम्हारी इज्जत होगी, तब तुम्हारा तनख्वाह बढ़ेगा, पेमेंट बढ़ेगा, वरना तुम ये 8 से 10 पर ही लटके रह जाओगे। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम इमामत छोड़ ही दो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि इमामत करने के लिए तुम्हारे पास एक कायदा कानून होना चाहिए, एक संगठन होनी चाहिए, एक निज़ाम होना चाहिए कि अगर कोई बात बनेगी, कोई बात बिगड़ेगी, तो उन तमाम बातों को लेकर हम अपने ग्रुप के अंदर जाएंगे और अपने सिस्टम में बात करेंगे। हर ज़िला के अंदर एक आध दो आलिम दीन ऐसे हैं जो बड़े मशहूर हैं और पूरे ज़िला के लोग उनकी मानते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके पास पहुंचते हैं। हर ज़िला में एक आध दो आलिम दीन बड़े हैं, बड़े मशहूर हैं, बड़ी इज्जत है, तो उन्हें तुम जिम्मेदार बना दो ना। लेकिन ज़रा सोच कर समझ कर, क्योंकि मैं एक बात और कहने जा रहा हूँ, हो सकता है तकलीफ पहुँचेगी आपको। कुछ ऐसे आलिम दीन हैं, कुछ ऐसे मौलवी हैं जो आज दलाली करते हैं, ग़ुलामी करते हैं, चापलूसी करते हैं। ज़रा इससे बचकर, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना है। और जब आप ग्रुप बनाए ना, तो ऐसे लोगों को दूर रखिए जो दलाली करे, चापलूसी करे, इधर की उधर की लगाए बुझाए, इससे बचकर।
कोई बड़े मशहूर आलिम दीन को आप जिम्मेदार बनाइए, पूरे ज़िला के अइम्मा को लेकर चले, ऐसा एक संगठन बना दीजिए। और मैंने कहा ना कि इमामत से आप बाहर आइए, ये मेरी राय अपनी है, अगर आपको पसंद हो तो आप ले सकते हैं। देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत बिजनेस बहुत पसंद था। आप लूले नहीं हैं साहब, आप लंगड़े नहीं हैं, अपाहिज नहीं हैं, आप कर सकते हैं। आपके पास अल्लाह ने बहुत ज़हन दिया है, आप पूरा कुरान को याद कर सकते हैं, पूरी हदीस याद कर सकते हैं, तो बिजनेस कैसे किया जा सकता है, क्या आप नहीं कर सकते? भाई ये 8-10 हज़ार की ज़िंदगी से बाहर निकलो। तिजारत बहुत पसंद था मेरे नबी को, उस मैदान में कूदो, 10,000, 15,000, 20,000 लेकर के किसी तिजारत में आ जाओ, फिर देखो तुम्हारे पास सलाहियत बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं ना है कि तिजारत करने के बाद तुम जो है दीन से फिर जाओगे, तुम जो है मतलब काफिर हो जाओगे, ऐसा कुछ तो नहीं ना है। तिजारत करने के बाद भी तुम इत्तेदाल पर ही कायम रहोगे ना, तो इसको पसंद करो। नहीं, अगर तुम्हें इमामत करनी ही है तो एक निज़ाम के साथ, एक सिस्टम के साथ, वरना अपना मजाक मत उड़ाओ। गांव वाले तुम्हारी चुटकियाँ लेते हैं, गांव में कोई इज्जत नहीं है। इमाम के नाम से लोगों को चिढ़ होने लगी है। इमाम का नाम सुनते ही लोग एक दो लतीफ़ा छोड़ते हैं, एक दो जोक्स छोड़ा जाता है, एक दो शायरी छोड़ी जाती है और मजाक उड़ाया जाता है। ओ फलाना इमाम साहब को देखा, ऐसे थे वैसे थे, अरे ऐसे बोलते थे वैसे बोलते थे। भाई तुम मजाक बन रहे हो। इसलिए इस वीडियो को तमाम अइम्मा मसाजिद तक शेयर कीजिए, ताकि अइम्मा मसाजिद जो अब तक सो रहे हैं जाग उठे और जाग कर कुछ ऐसा काम करे जो अपने लिए भी बेहतर हो और अपने बाद जो लोग आएंगे इस लाइन में, इमामत के लाइन में, उसके लिए भी बेहतर हो जाए। इसके लिए कदम उठाइए, कदम उठाने की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो कोई आपका साथी नहीं बनेगा, कोई आपका शरीक नहीं बनेगा, कोई आपके दुख सुख में खड़ा नहीं होगा। आपके बाल बच्चे मरते रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं। आपकी परेशानी बढ़ती रहेगी, कोई आकर के पूछ नहीं सकता है, क्योंकि हर आदमी खुद में बिजी है, हर आदमी खुद में परेशान है। तो आपकी परेशानी को क्यों ढोए, वो तो खुद पहले से परेशान है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को आसान आप खुद बनाइए। वो कहा जाता है ना कि किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती, बल्कि आसान बनाया जाता है। तो आप आलिम दीन हैं, आप अइम्मा मसाजिद हैं, आप जुमा में तकरीर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, मिलाद प्रोग्राम में लोगों को समझाते हैं, मगर आपके पास इतनी समझ नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है कि आप अपने बारे में भी कुछ बेहतर सोचें, कुछ अच्छा सोचें, जिससे आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो, आपके बाल बच्चों की ज़िंदगी भी अच्छी हो, आपके बाल बच्चे आला तालीम हासिल कर सके। इसलिए सबसे ज़रूरी है अभी के डेट में मसाइल इमामत को लेकर एक ग्रुप का होना, एक जमात का होना। जब तक अइम्मा मसाजिद एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, अइम्मा मसाजिद की दुर्गत होती रहेगी और ज़िल्लत का दिन देखना ही पड़ेगा। इसीलिए कदम को उठा लीजिए और एक साथ होइए। एक दूसरे इमाम का नंबर सबके पास है, इस बात को शेयर कीजिए, उनसे राय मशवरा लीजिए, डिस्कस कीजिए, बहस मुबाहिसा कीजिए, फिर एक दिन मीटिंग कीजिए। उस मीटिंग में पूरे ज़िला के आवाम को इनवाइट कीजिए, बुलाइए, फिर इस बात को रखिए। अगर इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे तो एक सिस्टम, एक निज़ाम, एक कानून बनेगा, आपकी इज्जत की जाएगी और क्या कहते हैं, आपके नाम का भी डंका बजेगा और आपका तनख्वाह भी बढ़ा दिया जाएगा और लोग आपको कुछ कहने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे कि हमने इमाम को बुरा भला नहीं कहना है, क्योंकि इनके पीछे पूरी टीम है, पूरी जमात है, पूरा संगठन है, पूरा निज़ाम, पूरा कायदा कानून है। वो पहुंच जाएगी और हमसे सवाल जवाब कर लेगी, तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को तमाम आलिम दीन तक, तमाम इमाम मस्जिद तक शेयर कर दीजिए। अल्लाह आपका भला करेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।